हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ आवर एनवायरनमेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर आपने हमारे चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Environment. It is derived from the French word environner. तो जो environment word है वो French word environner से derive हुआ है, which means neighborhood, which is the basic life support system. Environment is a basic life support system which is affected by people, place and things and nature surrounding our living organisms. So, environment includes natural phenomena and human-made phenomena. So 5th June is celebrated as the World Environment Day. There are two sets that talk about the environment, that is how environment is affecting the human beings and how human beings are affecting the environment. So basically जो environment है it plays a very important role, prominent role for determining the human behavior. Okay, so certain geographers said that it is just not the environment but human also that affects the environment. तो ये दो तरीके से होता है. जो हमारे geographers हैं वो ये भी कहते हैं कि जो environment है वो human पे भी affect करता है और human भी environment पर affect करते हैं. So it's from both the directions. Now what are the components of environment? So the components of environment. So environment is divided into three parts. There are three components. The first is natural, the second is human, and the third is human made environment. So first is your natural environment. So the natural environment is composed of land, air and water. So what we call land is lithosphere, what we call water is hydrosphere, and what we call air, that is atmosphere. So let's start to understand all these things in detail. So first is your lithosphere. The rocky outermost layer of the earth is called lithosphere. अर्थ का जो आउटर लेयर होता है उसे हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं. द टर्म लिथोस्फेयर मीन्स रॉकी क्रस्ट. लिथोस्फेयर वर्ड से समझ में आ रहा है हार्ड रॉकी क्रस्ट. इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मैंटल. क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मैंटल इसके अंदर आता है. द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फेयर इज़ 100 किलोमीटर. इसकी थिकनेस 100 किलोमीटर है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जैसे ही मैंने आपको बताया लिथोस्फेयर हार्ड रॉक से बना है, तो इट इज़ बीन कंपोज बाय रॉक्स एंड मिनरल्स. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर फॉर्म अ थिक लेयर ऑफ सॉइल. जो आपकी लिथोस्फेयर की अपर मोस्ट पार्ट है दैट फॉर्म्स अ थिक लेयर ऑफ सॉइल की एक बहुत थिक लेयर ये फॉर्म करती है. दिस इरेगुलर एंड रॉकी स्पेयर एक्सटेंड्स बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन बेसिस. ये आपका एक्सटेंड करता है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स तक. इट इज़ मार्क्ड बाय अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. सो बेसिकली लैंड में क्या क्या कवर होता है ये सब चीज़ें आती है. माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सब चीज़ें बोथ ऑन द लैंड मास एंड ऑन द ओशन फ्लोर. लैंड पर भी और ओशन फ्लोर पर भी. Lithosphere is a very important because it provides land for building houses. बहुत important surface layer होता है क्योंकि ये आपको help करता है for buildings, houses, roads, factories and it's also help for the agricultural land. It is a very important source of mineral and power resources. मैंने अपने पिछले चैप्टर में मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया था. मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे दे दूँगी. उसमें इस चैप्टर को डिटेल में समझाया गया है. नाउ आफ्टर लिथोस्फेयर कम्स वाटर विच मीन्स हाइड्रोस्फेयर. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर. The water present on the earth's surface is referred as hydrosphere. तो मतलब
हमारी अर्थ में जितना पानी है इट दैट ऑल कम्स अंडर हाइड्रोस्फीयर. द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज ओशन, सीज, lakes, rivers, etc. Bays, lakes, river, etc. form the hydrosphere. Water is also found below the surface of the earth as a groundwater. मतलब हमारे अर्थ के नीचे जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, वहाँ पर भी पानी होता है, जिसे ऑब्वियसली हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं. वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जैसे बोला जाता है जल ही जीवन है, तो वाटर सपोर्ट्स ऑल लाइफ. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सपोर्ट सिस्टम है वाटर. वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स. 3 फॉर्म्स में वाटर पाया जाता है, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल ऑन लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. अब जो वाटर साइकिल आपने समझाई है कि जो फ्रेश वाटर है वो बार बार रिन्यू कैसे होता है, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. नाउ आफ्टर वाटर कम्स द एयर, एंड द एयर विच मीन्स एटमॉस्फेयर. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर. The envelope of air which surrounds the earth is called atmosphere. मतलब एक प्रोटेक्शन का जो है, प्रोटेक्शन लेयर है अर्थ के तरफ, जो मतलब कि आपकी ख़राब एयर या पोल्यूटेड एयर से हमें प्रोटेक्ट करता है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर. इट एग्जैक्ट थिकनेस इज़ अननोन. मतलब इसकी जो एग्जैक्ट थिकनेस है वो अभी हमें पूरी तरीके से पता नहीं चली. इट्स अननोन. The atmosphere is held to the earth by the force of gravity. Gravity के थ्रू ये अर्थ से जुड़ी रहती है. The atmosphere contains life giving oxygens for the human being. जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो ह्यूमन्स को सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. The atmosphere contains life giving oxygens for human beings and animal and carbon dioxide to the plants. जैसे हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम लोग एक्सेल आउट जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सन्स हार्मफुल रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सर्फेस. जो मैंने आपको बताया था कि बैड रेडिएशंस हैं, जो पल्यूटेड एयर है, उसको अर्थ तक पहुंचने से एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है. तो यही मैं इसमें बताया जा रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है इट प्रिवेंट्स सन्स हार्मफुल रेज. इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट. एक्सट्रीम टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर. द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, जो वेदर में चेंजेस होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है. Without atmosphere, our Earth would have been a barren like other planets. मतलब अगर एटमॉस्फेयर अर्थ में नहीं होता तो वो बाकी प्लैनेट्स जैसे हैं उसकी तरह होता, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती. जैसे अर्थ में ही सिर्फ लाइफ है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक लेयर है अर्थ के चारों तरफ, बाकी प्लैनेट्स में नहीं है, इसलिए वहाँ पर लाइफ अभी तक नहीं है. Now we'll study about biosphere. सो बिफोर गोइंग टू बायोस्फेयर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इन तीनों को मिलाकर ही हमारा बायोस्फेयर बनता है, जहाँ पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर प्रेजेंट होता है. दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 layers फॉर्म्स बायोस्फेयर. It is a layer where living organisms affect, which it is known. Biosphere means where living organism affects and where living organism exists. So जो बायोस्फेयर तभी बनती है जब वहाँ पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इज देयर, मतलब लैंड, एयर, वाटर प्रेजेंट हो. Now let's study about biosphere. The narrow zone where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact is called biosphere. The word comes from Greek word bios. ये जो आपका biosphere word आया है, it came from Greek word bios meaning life. The Latin word sparia which means the total range, मतलब range, मतलब living range. Life supporting range, मतलब biosphere का मतलब ये होता है. This pair supports life and is also called living world. The biosphere consists of the plants and animal kingdom. The biosphere is small in size, but it is
estimated that about 15 lakh different species of organisms live in it. The biosphere provides nutrition and resources to the living organism. जो आपका बायोस्फेयर है वो न्यूट्रिशंस आपके प्लांट को प्रोवाइड करता है और ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है. Now we'll study about ecosystem. Now what is ecosystem? So before studying about ecosystem, let's start with the natural environment. What is natural environment? So natural environment is divided into two parts. The first is biotic and the second one is abiotic. So what is biotic? Biotic means where life exists, जहाँ पर ज़िंदगी रहती है, जहाँ पर human beings, living creatures रहते हैं. And abiotic means where there is no life, like where there is lithosphere, atmosphere and hydrosphere. ये तीन जब अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर life नहीं होती है. But when lithosphere, atmosphere and hydrosphere interact with biotic components, then it becomes a zone of life. And this is how we understand natural environment. मतलब lithosphere, atmosphere और हाइड्रोस्फेयर अलग अलग होके दे कम अंडर अबायोटिक, लेकिन जैसे वो बायोटिक कंपोनेंट्स से जुड़ते हैं, एक साथ होते हैं, देन वहाँ पर लाइफ आती है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल द नेचुरल इन्वायरमेंट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ecosystem. Now what is ecosystem basically? So let's understand this in brief. Ecosystem means ecology plus environment. So basically ecosystem is a functional unit which take about environmental body which is biotic and abiotic and ecology, like how living organisms interact. It is technically a summation of ecology and environment. Basically ecosystem is a summation of environment and ecology. Now we'll understand it in detail. All organisms, whether belonging to the plant or animal kingdom, interact with each other and are independent on one another. हर living organism, चाहे plant हो, animal हो, एक दूसरे पर निर्भर हैं. They are interdependent on each other. They also interact with their physical environment. The complex system of interactions of the organism between the organism and their physical environment in a particular area is referred to as ecosystem. वही मतलब interaction between living creatures, interdependence of living creatures between each other is also known as ecosystem.